रेसिडेंसी, अनंता रेसिडेंसी, तैयबा कलेक्शन, ताइबा, को स्पॉन्सर्ड बाय जाहिद फैशन मूड्स है और फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे का वीडियो कल से ही सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग काफी आक्रोशित इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। क्या है इस हंगामे के पीछे की वजह? जब हमने भाजपा नेताओं से जानने की कोशिश की तो दिलीप दे और शंकर चौधरी लोगों के इतने गुस्से में होने की वजह लोकसभा उपचुनाव में हुई हार को बताया। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ बूथों के एजेंट्स ने पैसे को लेकर कार्यालय में हंगामा किया था। वहीं तृणमूल नेता अभिजीत खटक ने इस हंगामे के बारे में कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, मानसिक रूप से बीजेपी कर्मी टूट गए हैं। कल के दुखेर विषय जे कल के आमादेर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सातग्रामे ताके टीएमसीरा निजे आमादेर झंडा सरिये निजे झंडा লাগিয়েছিল टीएमसी। तो अग्निमित्रा पाल सबाई जे ওই ঝান্ডাটাকে আমরা নামিয়ে আমরা বিজেপি ঝান্ডা লাগালাম, লাগিয়ে ওইখান থেকে সন্তোষ সিংয়ের মেয়ে একটা কার্যক্রম ছিল রিং শিরোমণি জামুরিয়ায় প্রোগ্রাম করে ওইখান থেকে একজন আমার কাজকর্তা, যেটা আমাদের কাজক্রম যে কর্মীদের পাশে সব সময় আমরা থাকি, ওর কাছে বাড়িতে গেছিলাম। তখনই 5টা নাগাদ ফোন এলো কি জেলা অফিসে একটা নিজেদের মধ্যে হয়তো কথা কাটাকাটি হচ্ছে। আমিও মোবাইলে শুনলাম কি হ্যাঁ চেঁচামেচি হচ্ছে একটু। আমি দৌড়ে পার্টি কার্যালয়ে গেলাম। যাওয়ার পর দিলীপ দা ছিল আমাদের জেলা সভাপতি ছিলেন, তো ওনার পাশে বসলাম। তারপরে কর্মীদের প্রায় 150 কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ বিক্ষোভ ছিল। তো এই ইলেকশন গেছে, আপনারা জানেনই কি ইলেকশনে হারার পর কর্মীদের ভিতরে নিজের যে ব্যক্তিগত নিজের যে শান্ত থাকার ক্ষমতা সেগুলো হারিয়ে যায় এবং ওরা সব জেলা সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করছিল আমরা কেন হারলাম, তার সমীক্ষা দরকার। টাকা পয়সায় অনেক অনেক বুথে টাকা কম পৌঁছেছে, কোনো জায়গায় বেশি দেওয়া হয়েছে, সেসব ওরা প্রশ্ন করছিল কি আপনি আমার উত্তর দিন। দিলীপ দা যা বলছিলেন উনি উত্তর দিচ্ছিলেন কি ঠিক আছে যেখানে পৌঁছায়নি সেখানে পরে দেওয়া হবে আপনাদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভ। তো এই ক্ষোভ বিক্ষোভের মধ্যে চেঁচামেচি হচ্ছিল, সেরকম আরও কোনো কিছু অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। আমরা ছিলাম, আমরা 40-43 বছরের কাজকর্তা, আমরা চাই না কোনো দিন কি আমাদের পার্টি অফিসে বা পার্টিতে কোনো রকমে কোনো ভুল কোনো কাজ হয়ে যায়, তার ফলটা যেন পার্টি ভুগে। সেই জন্য আমরা সব শান্তি করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কেন এরকম হলো, কি মনে করছে যে সামনে 2024 ইলেকশন এইভাবে চলতে থাকলে আমরা কিভাবে জয়লাভ করবেন? এবার অভিযোগ আসছে যে পার্টি কর্মীরা নাকি পাত্তাই পায়নি, তাদেরকে কাজে নেওয়া হয়নি, তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, গ্রাউন্ড লেভেলে যারা আছে তাদেরকে ইউজ করা হয়নি, বড় নেতা যারা আছে আদি বিজেপি বরং নব বিজেপির একটা বিবাদের কথা উঠে আসছে, পুরনো বিজেপি কর্মীদের পাত্তাই দেওয়া হয়নি। দেখুন ব্যাপার হচ্ছে পুরনো যারা কাজকর্তা, বরিষ্ঠ কাজকর্তা, মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় উনি আজ থেকে 10-15 দিন আগে। এক নম্বর হচ্ছে যে কালকে কোনো আমাদের জেলা পার্টি অফিসে মিটিং ছিল না। আমাদের যেটা মিটিং হয় সেটা জেলা সভাপতি ডাকে, সেই ধরনের কোনো মিটিং ছিল না। হ্যাঁ, তবে কিছু কার্যকর্তা এসেছিল, তারা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তারা আমি আমার রুমে তাদেরকে ডাকি, তারা বিভিন্ন অভিযোগ জানায়, বিশেষ করে এত ভোটে কী করে আমাদের হার হলো। তো এইটা নিয়ে তারা বিভিন্ন বক্তব্য আমাকে জানিয়েছে, সেগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি। তো তাদেরকে আমি জানিয়েছি যে এটা নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান চলছে, কী জন্য এই হারটা হলো, আর নির্দিষ্ট সময় তোমাদেরকে জানানো হবে। তো কার্যকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে, এই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু ওটা সামান্য ব্যাপার আছে, এটা ঘটতেই পারে। একটা যে হার, সেটা একটা কার্যকর্তাদের বিরাট ধাক্কা লেগেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের যেটা মনের বহিঃপ্রকাশ সেটা কালকে আমার সামনে এটা রেখেছে, এটাই বিষয় ছিল, আর কিছু বিষয় এর মধ্যে উঠে আসছে। একটা অভিযোগ হচ্ছে যে পার্টি থেকে যে ফান্ড দিয়েছিল সেটা ঠিক জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়নি। না, পার্টির ফান্ডের যেটা ব্যাপার আছে, 17C ফর্ম যেটা আমাদের বুথে যারা বসে
তাদের টাকাটা সত্যিকারে লেটে পৌঁছিয়েছিল। তখন ভোটের যেটা আছে প্রায় শেষ মুহূর্তে ওটা এসে পৌঁছিয়েছে। তো কোনো একটা বিধানসভায় যেরকম আসানসোল উত্তরে এটা আর ওদের কাছে পৌঁছায়নি এখনও পর্যন্ত, কাল রাত অবধি সেটা শর্ট আউট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে বলা হচ্ছে জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরে 2 ঘন্টা আটকে ছিল, হ্যাঁ, এবং সেখানে তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জি আসার পরে ব্যাপারটা মিটমাট হয়, অর্থাৎ ওদের 2 ঘন্টা তিনি ভোটে কোনো নজরই দেন। আচ্ছা, এই বিষয়টা আমার থেকে ভালো জিতেনদা বলতে পারবেন। এখন এই উত্তরটা জিতেনদার কাছে নেওয়াই ভালো আমার মনে হচ্ছে। তবে আমার কাছে যেটা খবর আছে, জিতেন তিওয়ারি আর উনি পাণ্ডবেশ্বরের নির্বাচনের ব্যাপারে উনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আর উনি নিয়েছিলেন। আমার কাছে যেটুকু খবর আছে, ওনার তো একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনার মেয়ের, ওই নিয়ে উনি ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যেও আর উনি পাণ্ডবেশ্বরের ব্যাপারে সদার্থক যে ভূমিকা সেটা উনি নিয়েছিলেন। আমার কাছে এটা খবর আছে। দেখুন, এটা তো হওয়ারই ছিল, কারণ যেভাবে আজকে বিজেপি পরাজিত হয়েছে তাতে আমি মনে করছি যে বিজেপির যারা কর্মী তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে, এবং এই হতাশার প্রতিফলন হচ্ছে কালকে ঝামেলা। এছাড়াও আপনাদের যেটা আমরা বলে থাকি যে যদিও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এটা বিজেপির পার্টির, কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে এখন বিজেপির ঝান্ডা লাগাবার লোক নেই। তারা এজেন্সির মাধ্যমে, লেবারদের মাধ্যমে ঝান্ডা লাগাচ্ছে, তারা বুথে বসাচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে ছেলেদের। তো এইভাবে একটা পার্টি তো চলে না বা চলতে পারে না। তারই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম হয়তো সে কালকের ঘটনায়। बर्नपुर की नूरानी बुक डिपोट बरसों से लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज का उद्घाटन शनिवार को E6 डेली मार्केट बर्नपुर में किया गया। दुकान के मालिक मोहम्मद महबूब रहमान हाशमी ने नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके यहाँ नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोल्स, प्रेयर हिजाब, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन लोगों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आशा करता हूं कि आगे भी ऐसा रिस्पांस ग्राहकों से मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश आगे यही रहेगी कि लोगों को नए डिजाइन के ट्रेंडिंग कपड़े हम अपने स्टोर नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज में उपलब्ध करा पाए। कहा जाता है जी स्टॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज का इफ्तिताह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इफ्तिताह हुआ। लोगों ने बहुत अच्छा ताउन भी किया, लोग आए
और हर तरह की जो हमारे यहाँ थे कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, सूट और ये स्टॉल वगैरह, इसकी भरपूर तरीके से जो रेंज हम लाए हैं उसका रिस्पॉन्स भी कल पहले दिन के हिसाब से बहुत बेहतर रहा और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें इस तरह का ताउन मिलेगा लोगों से और वो हमारे दुकान पे अपने मन के मुताबिक और नए ट्रेंड के हिसाब से जो हम लाए हैं उसको उससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद महबूब रहमान हाशमी, E16 कितना बाबू, E6, दिल्ली मार्केट, बांगपुर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9933121270 एंड 707636867 यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा। नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अगर आप हैं एक फैशन लवर तो जाहिद फैशन मूड्स है आपकी राइट डेस्टिनेशन, क्योंकि ये है महिलाओं की पहली पसंद। यहाँ आपको मिलेंगे लेडीज आउटफिट्स की एक से बढ़कर एक कलेक्शंस। जाहिद फैशन मूड्स, कलेक्शंस ऐसी जो आपका मूड बदल दे। न ज्यादा महंगा न ज्यादा सस्ता, बजट होगा केवल आपके अनुसार। हमारे यहाँ क्रॉप टॉप, गरारा, सरारा, सूट पीस, कुर्ती, जीन्स, लहंगा, लेगिंग्स, जेगिंग्स के अलावा अन्य सभी प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। हमारा पता है हाजी बेल्ट लाइन, बस्तिन बाजार, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7031537798। Don't wait anymore. Get trendy. कल इंटक बर्नपुर के कार्यालय में संगठन कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फेरो स्क्रैप लिमिटेड बर्नपुर शाखा के सैकड़ों ठेका मजदूर और कर्मचारी मौजूद थे। इस सभा के बाद कल शाम स्कोप गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
वहीं इस सभा के दौरान यूनियन के महासचिव हरजीत सिंह ने कहा कि सरकार FSNL जैसे करोड़ों के लाभ कमाने वाली संस्था को बेचने के लिए उतारू है, जिसके लिए केंद्र सरकार से बिक्री हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहीं कल स्कोप गेट पर किए गए विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर प्रस्तुत करके राष्ट्रीय नेतृत्व एवं विरोधी दलों के सांसदों को बर्नपुर बुलाकर इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। इनके अलावा पे स्केल, ठेका कर्मियों के वेतन सहित अन्य विषयों पर भी इस सभा में चर्चा की गई। वहीं गौरी शंकर सिंह, बिजॉय सिंह, अजय रॉय, मोहम्मद अनवर, सोमेन दत्ता समेत सैकड़ों की संख्या में इंटर कार्यकर्ता इस सभा में उपस्थित थे। वैल्यू है उसका चौथा पांचवा हिस्सा भी नहीं काम रखते, वो बेच देना चाहते हैं। कोई भी छोटा से छोटा मोटा पूंजीपति इस कंपनी को खरीद सकता है। ये कंपनी बिक्री होने पर लगभग मेरे ख्याल से 1400-1450 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर और लगभग 600 वर्कर, एम्प्लॉय, परमानेंट वर्कर सब लोग बेकार हो जाएंगे। सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, सबके परिवार के लिए जीना खाना और रहना मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं इसके पहले केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ इसको को भी प्राइवेट करने की घोषणा की गई थी, एरो स्टील प्लांट को भी घोषणा की गई थी, लेकिन हम लोगों ने फिर कमेटी बनाकर लड़कर उन्हें बचाया है और हम अब आने वाले दिनों में इसको को भी बचाएंगे। ये पूरे देश में जितने भी प्राइवेट कारखाने हैं, प्रॉफिटेबल कारखाने हैं, सभी को ये सरकार धीरे धीरे एक एक करके प्राइवेट करके बेच देना चाहती है। इस देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेच देना चाहती है, चाहे वो विशाखापट्टनम हो, चाहे वो सैलम स्टील प्लांट हो, चाहे वो एलो स्टील प्लांट हो, चाहे वो फेरो स्क्रैप निगम हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेल हो, वो जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो कोल हो, वो सभी को धीरे धीरे करके बेच देना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को एकत्रित होकर, एकजुट होकर, जितने भी ट्रेड यूनियन हम लोग हैं, हम लोग अपना झंडा और अपना रंग को भूलकर इस लड़ाई और इस लड़ाई को तब तक करेंगे जब तक हम टेंडर करती है 5 तारीख को, तो हम लोग इसको के हर गेट को जाम कर देंगे। हम लोग इसको के हर गेट को जाम कर किसी भी प्राइवेट मालिक को घूमने नहीं देंगे। शूटर मारकर बंदूक से हम लोग बजा देंगे। तो किसी में हिम्मत है तो फेरो स्क्रैप निगम का टेंडर ले और इसको में आकर काम करके दिखाए। उसी तरह हम ये प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये चेष्टा है कि हम जितने भी फेरो स्क्रैप के प्लांट हैं, जो जितने भी हमारे सेल के प्लांट में काम करते हैं, चाहे वो दुर्गापुर हो, चाहे वो बर्नपुर हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो राउरकेला हो, चाहे वो भिलाई हो, चाहे वो भद्रावती हो, चाहे वो RINL हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो प्राइवेट हो, हम सब ट्रेड यूनियन एकत्रित होकर इस लड़ाई को और भी जोरदार करेंगे। हर गेट पर हर पहरा देंगे ताकि कोई भी प्राइवेट मालिक इस कारखाने में ढूक ना पाए। और हम लोग जो हमारे सेल का हिस्सा है, जो हमारे सेल में काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और सेल को भी प्रॉफिट दिलाता है, खुद भी प्रॉफिट करता है, उसको हम मालिकों के हाथों में बिक्री होने नहीं देंगे। ये हमारा उद्देश्य है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई को सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लेवल में ले जाएंगे। हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बात की है, हम लोग बर्नपुर में जरूरत हुआ धरना देंगे, जरूरत हुआ हम लोग गेट बंद करेंगे। স্নান করছিলাম। ঠিক আছে, ওটা ইয়েটা কেন আজকে RC-19 ক্যাটল স্মাগলিংয়ের কেসে বিকাশ মিশ্র সিবিআই হেফাজত থেকে কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। সিবিআই আর ফার্দার পিসি প্রেয়ার করেনি, সিবিআই জেসি প্রেয়ার করেছিল, মানে জেল হাজতে পাঠানো হয়।
এবং বিকাশের পক্ষ থেকে আমরা জামিনের আবেদন করেছিলাম। বিচারক দুপক্ষকে শোনার পর জামিনের আবেদনটি খারিজ করেছেন এবং 22 তারিখ অবধি বিকাশ মিশ্রকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। कैटल स्मगलिंग केस RC19। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।